Yes. So Guten Morgen, heute beginnen wir eine neue Abschnitt. Means what? Good morning. Heute means today. Heute beginnen wir. Wir means what? We. Wir means what? We. So whatever I'm speaking, I will start write it over here. So Guten Morgen. One second. I will share the screen first. Can you see the screen, Ria? Yes, sir. Okay. So Guten Morgen. Good morning. Heute. Heute means today. What I have just now spoken one line that I am writing here. Heute beginnen wir eine neue Abschnitt. Okay. Heute means today. Right. Beginnen to begin. We. Eine is an article. Einen is an article. Today we are going to begin a that is a, right? Neue means new, and Abschnitt means chapter, lesson, whatever it is. Okay. So today we are going to begin a new chapter like this. Okay. So now if you look at this particular sentence, right, it's very simple one, right? But if you look at this sentence, you can see the verb place where we are going to put a verb, right? In this particular case, what happens? Today, starting it with today. After that, there is a personal pronoun, right? We. And then are going to, or let's say, today we begin. Let's start with this like that. Okay. Today we begin. Okay. So begin is what? It's a verb. So it is a verb, but this verb placement in English is after personal pronoun, right? But in German language, there is a rule. The rule says like this, that the verb, the place of the verb always should be at the second place. Second place, whatever it is, right? So heute beginnen wir eine neue Abschnitt. It will not be like this that heute wir beginnen. No, heute beginnen wir. So if you look at this, then you can just now see that the grammar is there, and over here we have seen the first rule that the place of, or you can say the placement of that particular verb should be at the second position. It may start, your question can be asked from the, it can begin with the verb also, right? But the sentences you are going to form, there is a rule that your verb place should be at the second place, right? First can be either adjective, first can be either personal pronoun, first can be either noun, anything can be, but second place always verb. That is the rule of German language. Okay. And English we can say like this. English we cannot say like this, right? Today begin we a new chapter. No, today we begin a new chapter. We are going to begin. As we know, there is only one present tense in German, right? So even though if you translate like this, that today we are beginning with a new chapter, today we have been started to begin a new chapter, means हम लोग ने सुबह से स्टार्ट भी किया है, सो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, और वी आर गोइंग टू बिगिन, right? So it's a again the future kind of, but it's again a present tense, right? So there are a lot of types of present tense in English language, but in German only one, right? So beginnen, right? And we know it how to conjugate the verb. Okay. Now let's see the chapter. I have already shared the screen. So I think, can you able to see now, Ria or anyone? Yes, sir. Okay. So let's start with this. Okay. So what we will do, we will first read the dialogue.
These are some of the dialogues, right? These are some of the persons who are going to either university or school or like that. Okay. Okay, so now how they are going to start conversation with each other. So it's a very simple paragraph. So let's start with it. Okay, after me please repeat last time jaisa. Okay, so bitter wiederholen z, bitter wiederholen z means what? Repeat, please repeat after me. Okay, now please repeat. Abschnitt eins. Abschnitt eins. Anyone can unmute and you can please repeat after me so that I will just come to know that whether your pronunciation is or you all of you also can unmute and you can repeat after me, or anyone. It is not compulsory also, but it is from your side or from, let's say, from my side. If I want to check whether your pronunciation is correct or no, so at least for once, at least for reading purpose, you please unmute yourself and you can start speaking after me. Okay, so let's start. Abschnitt eins. Okay, so please anyone can unmute. Ria, can you unmute? Yes, sir. Okay, please repeat after me. Na? So at least one students, or I'm just requesting that all of you please unmute and you speak or repeat after me, so that whatever you are speaking, whether that pronunciation is correct or no, that I can able to correct it. Okay. Otherwise, I will also not come to know whether you are or you are speaking correct pronunciation or no. Okay, so please repeat after me. Jasprit, you can also, you welcome here for a new German course. Hello, Jasprit is there? Yes, sure. Thank you so much. Okay, Guten Morgen, Guten Morgen. Please repeat, Guten Guten, Morgen, sir. Guten Morgen. Guten Okay, Morgen. yeah, Yes. yeah, yeah, yeah. Okay, so Ria, Jasprit, you can unmute, or otherwise, others also you can unmute. There are other persons, right? Ragini is there, Udesh, Piyush, Saloni, right? Anjan, then Isha is there, Tushar, again Isha, and Hardik Ora, right? So and again few more students are there. So it's you can say the request from my side. You please unmute and repeat after me, right? Okay, please repeat. Huh? Abschnitt eins. Abschnitt Abschnitt 1. 1. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Anton Brega. Ich bin Ich bin Anton Anton Brega. Brink. Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Anton 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 Brega. 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 Mein Name, Mein Mein Name, Name, mein Name mein mein Name Name ist ist Richard 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 Robertson. 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 So in German, so with O means what? O only, right? O means O only. So Robertson. 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 Okay. Ich komme, Ich Ich komme, komme, ich komme. ich ich komme, komme, See, there are two types of ish. Okay. Ish. Sh means what? Isha. Isha sh जो है ना, sh. ich, That sh is there. च नहीं है. Ich नहीं. yes, ich, Ish. Right. ich Ish. komme, Ich komme. ich Repeat. komme ich komme Aus 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 England. England. E is A and A Ah, is A. Correct. So ah, that's why pronunciation is England. England. Und 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 lerne hier lerne hier Deutsch. 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 Mein Name ist Mein Mein Name ist ist Peter Peter Karlis. Carles. Carlos. Ich gehe Ich gehe auch auch hier hier in die Schule. in die Schule. Richard ist Richard ist mein Freund. Mein Freund. Ihr seid Ihr seid sein Freunde.
Friend. Freund. 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 हाँ. Lernt ihr Lernt ihr oft zusammen. oft Zusammen. हाँ, आता अभी देखो ओफ है ना, ओफ, तो टी इज देयर ना, तो ओफ्ट. Oft. ओके. हाँ. सो इसमें कैसा है, इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, देर इज नो लाइक साइलेंस, ऐसा लेटर को साइलेंस ऐसा नहीं है, जैसे मैंने हर बार रिपीट करता हूँ ना, हाउ आर यू, आ नहीं. सो आर र इज देयर राइट, बट र यानी उसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रेस नहीं देने का, लेकिन वो बोलना भी चाहिए, ऐसा है. तो इसमें भी कैसा है, ओफ्ट. बोलो. Oft. हाँ, वेरी गुड. लर्नट ihr oft zusammen. Lernt ihr oft oft zusammen. हाँ. अभी एक जन है ना लर्नट बोला है, लर्नट नहीं, लर्नट. Lernt. हाँ. ई इज ए ना, ई इज ए राइट. अभी लास्ट में अगर ई आता है तो अ प्रोनाउंस करने का, अगर बीच में अगर ई आता है तो ए करके ही प्रोनाउंस करने का है. जैसे जैसे पहले सेंटेंस में कैसा था, इश गेह. बोलो. Ich gehe. हाँ. अभी देखो लास्ट में ई है ना, तो उसका हम लोगों ने अ करके प्रोनाउंस किया, लेकिन बीच में जो ई है उसका हम लोगों ने ए किया, राइट. गेह. ओके, लाइक दैट. सो नेक्स्ट, या, Ja, आबेर. aber हाँ, one second. If anyone has entered, so please you tell me. I will just accept his invitation. Huh? Please. Ja, aber ja, aber Peter Peter. Peter arbeitet Arbeitet. what sir? arbeitet arbeitet. Arbeitet. हाँ. Aber Peter arbeitet. Aber der हाँ. arbeitet. 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 Arbeitet हाँ. Nicht viel. nicht viel. हाँ. अब ये वी है ना, वी का मतलब है फाउ. हाँ, Faul. वी यानी फ करके प्रोनाउंस करने का, एफ है ना, क्योंकि हम लोग ने ए बी सी डी जो लर्न किया है उसमें वी स्टैंड फॉर फाउ. फाउ यानी फ, तो इसके लिए विल नहीं प्रोनाउंसिएशन करने का, विल के बजाय फील. ओके. सो पेटर arbeitet nicht viel. बोलो. पेटर arbeitet nicht viel. Er arbeitet wenig. Er arbeitet wenig. Okay. Ich sage immer Ich jage immer. Immer. Peter. Peter. Peter नहीं, Peter. Peter. Du bist faul. Du bist faul. Faul. Und ich bin fleißig. Und ich bin fleißig. Fleißig. हाँ. अभी ये जो बीटा यानी क्या, डबल एस. बीटा इज वन मोर एडिशनल अल्फाबेट. ओके, इन जर्मन लैंग्वेज, Sir, राइट. हाँ. so can you repeat the last word? Ich bin That Zaijish. हाँ, fleißig. Fleißig. So it's Fleißig or Zaijish? Fleißig. F है ना, FLEI. Fleißig. Okay, sir. हाँ. अगेन, und ich bin fleißig. बोलो. Und ich bin fleißig. हाँ. Ich bin faul. Ich bin faul. Ich bin faul. Und du bist fleißig. Und du bist fleißig. Fleißig. Das ist falsch. Das ist falsch. Falsch. Du lernst langsam. Du lernst langsam. Lernst. Lernst. ल नहीं, अ नहीं है रे, ए ना, ए. Du lernst langsam. Lernst. 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 हाँ. हाँ. Du lernst langsam. Du lernst Lernst langsam. langsam. हाँ, तो ए चा अच होतो, अ नहीं करने का है, ए करने का है. Und ich lerne schnell. Und ich lerne schnell. Schnell. हाँ. लर्न नहीं ना, लर्न. बोलो. Lerne. हाँ. हाँ, लर्न. Lernen. Lerner. हाँ, करेक्ट. Lern. हाँ. Wo ist denn die Lehrerin?
Wo is dandy Lehrerin. डी लेरेरिन. Larinin. हाँ Lehrerin. ठीक है, आधा आधा बोलते हैं. वो ईस्ट Wo ist Wo ist डी die डेन डी dandy die लेरेरिन. Lehrerin? Lehrerin? Kommt sie nicht? Kommt sie nicht? Nicht. Nein. Nein. Frau Meier Frau Meier Frau Meier kommt nicht. kommt nicht. kommt nicht. Kommt nicht. Kommt nicht. Kommt nicht. सर हाँ तो वो लास्ट में शो कैसे आया? NSCHT है तो मैम वो जो CHT है तो वो शो कैसे आया सर? नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट वो ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट. सो निस्ट, सो श ही आएगा, बिकॉज CHT करके जो कॉम्बिनेशन आता है वर्ड के अंदर, इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट. डिफरेंट डिफरेंट वर्ड कंटेक्स्ट जो है ना, वो वर्ड कंटेक्स्ट के अंदर जो जैसे प्रोनाउंसिएशन आता है वैसे ही हम लोग को करने का. राइट. सो these rules Okay, sir. are actually fixed. ओके, जैसे कोम्जिनिस्ट, राइट, जैसे अलग अलग आगे जाके भी अलग अलग कॉम्बिनेशन के वर्ड आ जाएंगे. राइट. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना SPRA, सो हम लोग बोलते हैं स्प्राख, उसमें भी श है ना. राइट. सो उसमें भी हाँ, श सर. है, CHT में भी श है. सो इट डिपेंड्स अपॉन. और ये भी देखो, डस इज फाल्श, सो श ही आता है ना, SCH. राइट. सो SCH CHT, और ये जो कंटेक्स्ट में जो आता है, यानी वर्ड में जो अगर आता है तो वैसा प्रोनाउंसिएशन हम लोग वैसे ही करते हैं. ओके, सो लेट्स गो अहेड. जी इस्ट इन बोन. Sie ist in Bonn. Aber Aber dort kommt dort kommt Dort kommt Herr Müller. Herr Müller. 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 हाँ, अभी देखो यू उमलाउट है ना, यू उमलाउट, सो आपको यू ट्विस्ट करने का, यू, सो म्यूलेर. Mew. Müller. हाँ, वेरी नाइस. Er ist Ist der Lehrer. der Der Lehrer. Lehrer. हाँ, richtig. 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 हाँ, अभी ये देखो इधर भी कॉन्जुगेशन में लास्ट का जो जी है ना, रिस्टिग है ना, तो इधर कोई लोग ऐसा बोलते हैं रिस्टिग, लेकिन ग करके भी है, अदरवाइज यू में पुट रिस्टिश, दोनों करेक्ट है. So, रिस्टिश भी बराबर है, रिस्टिग ग भी बराबर है. आर यू गेटिंग? अभी ये कंटेक्स्ट में खाली ये वर्ड में ही, और ऐसे टाइप के जो जो वर्ड है आगे आएंगे उसमें दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, रिस्टिश एंड रिस्टिग. राइट. जिधर जिधर क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या नहीं पॉसिबल है, वो मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ अभी. आर यू गेटिंग? सो दैट you should not get confused. Okay, what you have to do, you have to just trust on me, whatever I am telling you the pronunciation, same on the same line you also do the repeat the same thing. Are you getting? Because this is how, because I have spoken so many German people, right? So whatever I am speaking with them, they are speaking with them, so conjugation, conversation, it takes very nice. And I have actually learned the German language from the Max Muller Bhavan, where the German people are only taught us, how to do the pronunciation. So they are only saying, जैसे अभी हम लोग का इंग्लिश में भी अलग अलग टाइप्स है, लेकिन जर्मन में इतना टाइप्स नहीं है. बट लेट्स से पहले कैसा था, राइट? ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, राइट. तो ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी में कोई लोग ऐसा बोलते थे ईश, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ईश, तो एक साइड के लोग बोलते थे इक, क, राइट, इक. सो ईश भी प्रॉपर है और इक भी प्रॉपर है. आर यू गेटिंग? बट लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट लैंग्वेज, गवर्नमेंट लैंग्वेज यानी गवर्नमेंट जो डिसाइड करते हैं कि यही प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट है, राइट. जैसे अगर हम लोग मराठी का भी मराठी में बोलते हैं, राइट. अगर मैं बोला ना कि मी अध्यापक आहे, तो अध्यापक यानी क्या, वो मराठी वालों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि अध्यापक यानी क्या. अध्यापक का मतलब है प्रोफेसर. आर यू गेटिंग? वैसा तो इतना भी स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है, राइट. जब भी हम लोग बोलते हैं कि मंत्रालय का लैंग्वेज, दैट इज एक्चुअली मराठी, right? Because we are having so many types of Marathi in the different villages, right? इतना वेरिएशन जर्मन लैंग्वेज में नहीं है. So that is how it is the internationally it is standard, right? लेकिन कोई गांव में, जैसे अगर आप लोग बोन में गए, जैसे इधर ये बोन नाम का सिटी है, और इफ यू गो
यू नो लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रैंकफर्ट में गए और ऐसे कुछ कुछ अगर शहर में गए तुम लोग, तो उधर कभी कभी लोग है ना इक बोलेंगे, राइट, और इश बोलेंगे। ओके, तो जनरली इफ यू सी, इफ यू कैन टॉक इक और इश, both are correct, like that over here we come across one word रिस्टिग। सो रिस्टिग भी बराबर है और रिस्टिश ये भी बराबर है। आर यू गेटिंग? सो इट डिपेंड्स अपॉन वेयर विच प्लेस यू आर गोइंग। ओके, और इसके अलावा और दूसरा कोई है क्या? कोई नहीं है। इसके अलावा दूसरा प्रोनाउंसिएशन कुछ भी नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा, दैट इज 100% श्योर, 100% श्योर। आर यू गेटिंग? सो इसके लिए हाँ बोलो, रिस्टिश, Richtig. ich bin der Lehrer Ich bin der Ich bin Lehrer der Lehrer und 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 sie sind die Schüler. Sie Sie sind sind die die Schüler. Schüler. Ich frage Ich frage Ich frage und und sie antworten. sie Sie antworten. antworten. Wir lernen Wir Wir lernen lernen die Sprache. die die Sprache. Sprache. Wir üben Wir Wir üben üben die Grammatik die Grammatik. die Grammatik. und Und wir lernen Wir lernen हाँ रिया तू लर्नन बोलती है, लर्नन, lernen ए बोलना, लर्नन। learn हाँ Learn. तरी फिर भी आपका ना अ ही आता है, अ मत, अ नहीं बोलने का, दूसरी जो वो बराबर बोले देख, वीर लर्नन। lernen. हाँ अभी आ गया, वीर लर्नन दी रेगेल्न। Wir lernen die die Regeln. नहीं what sir? Die बोला? वीर वीर लर्नन डी Wir रेगेल, wir lernen die रेगेल्न। Regeln. Regeln. हाँ REGEL रेगेल, और एन भी है ना तो रेगेल्न, ऐसा। ओके Regeln. वो इज दस बुक Wo ist das Wo Buch? ist das Buch? हेर रॉबर्टसन। Herr Robertson. Herr Robertson. हियर इज दस बुक, Here is das Buch. करेक्ट। हियर जिंड, बोलो हियर जिंड Here sind auch Auch ein Heft, ein Heft, ein Heft, ein Füller ein ein Füller Finger und ein Bleistift. und ein Und ein Bleistift. 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 Correct, Bleistift. Richtig, danke. Richtig, Richtig, danke. danke. Okay. Now this is like just a reading. अभी ये जो डायलॉग्स है ना, ये ऐसे डायलॉग्स है आपको घर में बैठ के रोज आपको जोर जोर से रीड करने का है। लाउडली यू हैव टू स्पीक सो दैट यू नो आपके माउथ में, और आपको है ना हैबिट बनना चाहिए ये सब प्रोनाउंसिएशन का, राइट। सो इसके लिए अभी देखो, अभी है ना ये डायलॉग जैसे कैसे बोलने का, बिकॉज सी यू विल हैव द कन्वर्सेशन, है ना, आप लोग कन्वर्सेशन करने का है, राइट। वी आर नॉट अ न्यूज रीडर, है ना, एक एक लाइन और एक एक वही सेमी सेमी वॉल्यूम पे ऐसा तो हम लोग बोलते तो दूसरों को भी बोर होता है, राइट। सो जनरली इट्स अ डायलॉग, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रीड द होल पैराग्राफ, okay, so just listen carefully, okay. So now I will start it, okay. Abschnitt 1. Guten Tag, ich bin Anton Brega. Mein Name ist Richard Robertson. Ich komme aus England und lerne hier Deutsch. Oh, mein Name ist Peter Carlis. Ich gehe auch hier in die Schule. Richard ist mein Freund. Ihr seid Freunde. Lernt ihr so oft zusammen? Ja, aber Peter arbeitet nicht viel. Er arbeitet wenig. Ich sage immer, Peter, du bist faul und ich bin fleißig. Ich bin faul und du bist fleißig? Das ist falsch. Du lernst langsam und ich lerne schnell. Wo ist denn die Lehrerin? Kommt sie nicht?
Nein. Frau Mehr kommt nicht. Sie ist in Bonn. Aber dort kommt Herr Müller. Er ist der Lehrer. Richtig. Ich bin der Lehrer und Sie sind die Schüler. Ich frage und Sie antworten. Wir lernen die Sprache. Wir üben die Grammatik und wir lernen die Regeln. Wo ist das Buch, Herr Robertson? Hier ist das Buch. Hier sind auch ein Heft, ein Füller und ein Bleistift. Richtig, danke. दिस इज द समथिंग लाइक कन्वर्सेशन. सो आपके ये माउथ को जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये हैबिट होना चाहिए, राइट, हाउ टू प्रोनाउंस इट, राइट. सो इवन दो वी आर नॉट नोइंग नाउ द मीनिंग, स्टिल वी शुड एबल टू, राइट, डू द प्रोनाउंसिएशन वेरी करेक्टली, राइट. अभी हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं. एनीवन हैज गॉट एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रोनाउंसिएशन दैट ये वर्ड वापस ये करो, वैसे भी हम लोग वापस से अभी देखने वाले ही है, सो टेंशन नहीं है. फिर भी one second ना, people are coming late, so I have to add them. मैं ऐड करता हूँ. तो जल पेट नहीं करोगे. one second ना. Okay, now it will be possible. Now see, Abschnitt 1. 1 means 1. Okay, these are numbers. Numbers हम लोग को लेने का है, right? Abschnitt, Abschnitt का मतलब है lesson और chapter, right? Now what you can do, if you are having German notebook, right, please write down the words and their meaning so that it will be clear to you, right? Because हम लोग को हाथ से लिखने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए. इसके लिए इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, प्लीज डू इट. आइंस मीन्स 1, Abschnitt मीन्स लेसन और चैप्टर. ओके, Guten Tag, Guten Tag means good day, right? Ich bin Anton Brega. Anton Brega is the name of the person. Ich means I, right? M means M. Bin means M. So Zain, इसका वर्ब कौन सा है? पहला ओरिजिनल Zain वर्ब है, right? That we have conjugated. Okay, Zain नाम का infinitive form of verb है. We also seen I, am, you, are, he, she, it, is. So ich bin, du bist, er, es, sie ist, right? We are, all of you are, and they are. Wir sind, ihr seid, sie sind. Okay, so a lot of this chart we have seen it. Okay, according to the same chart, we are following it over here. Okay, so now see, mein Name. Mine means my. Okay, so this is now the possessive pronoun. Grammatically it is called as possessive pronoun, right? हर एक चार्ट हम लोग देखने वाले हैं. नाउ वॉट एवर ट्रांसलेशन वी आर डूइंग इट, ट्रांसलेट करते करते हम लोग उसका ग्रामर थोड़ा बहुत क्या है वो भी हम लोग देखने वाले हैं. डिटेल में ग्रामर तो हम लोग वैसे ही हम लोग देख ही रहे. mein Name ist, my name is Richard Robertson. Ich komme, komme means come, I come. Aus is a preposition. Aus is a preposition. What is the meaning of it? From. I come from England. Und means and. Lerner, learning here. Here is here only, right? In English we are saying here, right? But over here HIER spelling alag hai, right? Deutsch, Deutsch means actually German. Deutsch means German, German language. Mein Name is Peter Carlis. My name is Peter Carlis. Ich gehe. Ich gehe. Gehe means the verb is gehen. Gehen means to go. Auch is what? Also. Auch is also. I also go here in the
School. Schule means school. Now, as I told you, right, all nouns or many of the nouns, right, in German, or in fact, all the nouns, they are having genders, right? Either it's a masculine, feminine, or neutral. So, school in German, it is feminine. That's why it is D. So, articles chart also we are going to see. But if you check like this in English, I will say I also go, right? So, go verb position is the third place in English. But in German, as I told you, what is the rule? Rule is verb is always at the second place. Second place, right? This is how we have to make a sentence. Next, Richard is mein Freund. Richard is my friend. Now this is masculine, male friend, like that. Okay, mine, and that's why you can see the possessive pronoun. See this. This is masculine mine, right? अगर वो फीमेल रहता है तो उसको हम लोग माइनर ऐसा करना पड़ता है. माइनर फ्रेंडिन, ऐसा फ्रेंडिन आई एन. अगर ऐसा रहता था फ्रेंडिन, अगर ऐसा रहता है तो क्या हो गया? फीमेनाइन फ्रेंड. Richard or the name of the person is ladies now. Let's say lady, right? So she is my friend. She is my friend, right? Now this minor लिखा और friend लिखा तो feminine होगा. My friend it is masculine, right? So Richard is my friend. Ihr seid. Ihr means no. Ihr, what is ihr? Ich bin और ich du er sie wir ihr. ihr का मतलब है all of you or you, both of you, all of you or both of you. You are talking to the mob. Mob means audience. सामने वाले ऑडियंस की तरफ आप बोल रहे हो, right? So Peter is talking to this, ihr seid, all of you are, right? Seid means are. Again, it's a sein verb. Sein means to be. I am, you are, like that. Okay, to be. ये conjugate किया है. Ihr seid, all of you are friends. Lernt ihr. ईर को लैंड को कॉन्जुगेट किया है, राइट? डू यू लर्न ऑफन. ऑफ्ट मीन्स ऑफन. और झुजामेन का मतलब है टुगेदर. डू यू लर्न ऑफन टुगेदर, लाइक दैट. लैंड ईयर ऑफ झुजामेन, right? Like this. Yeah means yes. Now here in English we are saying actually y, right? But in German J means yod, है ना? J means yod, alphabet A B C D वाला J. So J actually pronunciation करते हैं य जैसा हम लोग pronunciation करते हैं ना, ये ऐसा मराठी में य ऐसा लिखते हैं. So yeah, aber means but Peter arbeitet. अर्बाइटेट यानी अर्बाइटन करके वर्ब है, उसका मीनिंग है टू वर्क. बट पेटर निस्ट फील, राइट? अर्बाइटेट निस्ट फील का मतलब है मच. ही डजंट वर्क मच, ज्यादा काम नहीं करता है वो, ऐसा. डजंट वर्क मच, लेकिन इनके डजंट करके ऐसा कुछ नहीं है. इधर क्या है? पेटर अर्बाइटेट निस्ट फील. ओके, ऐसा बोलते हैं. इन इंग्लिश यू कैन ट्रांसलेट पेटर डजंट वर्क मच. एयर अर्बाइटेड, एयर यानी ही पर्सनल प्रोनाउन है अपना. अर्बाइटेड यानी टू वर्क. वेनिग का मतलब है वो लिटिल, वो थोड़ा ही काम करता है, ज्यादा काम नहीं करता, ऐसा उसका कहना है. लिटिल, वेनिग का मतलब है लिटिल. एयर अर्बाइटेड वेनिग, ही वर्क्स लिटिल. Zagen is the verb. Zagen means to say. Immer means always. In English you will say I always say. लेकिन एज अ रूल जर्मन का रूल है कि ये वर्ब सेकंड प्लेस में होना चाहिए. इसके लिए इश झाग इमेर ऐसा बोलने का. इश इमेर झाग ऐसा नहीं करने का. सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड सेंटेंसेस इन जर्मन लैंग्वेज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन जर्मन फर्स्ट और जर्मन इनटू जर्मन, ऐसे ही करने का. यू डू नॉट कन्वर्ट द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सेंटेंस इनटू जर्मन. इंग्लिश पहले दिमाग में लिया, बाद में इसको जर्मन किया, ऐसा किया तो आपको जर्मन नहीं आएगा,
राइट, बिकॉज इन इंग्लिश यू विल से आई ऑलवेज से, एंड यही ट्रांसलेशन अगर आपने किया तो ईश इमेर झाग ऐसा किया तो पूरा वाट लगे, यानी वो ग्रामेटिकली करेक्ट है ही नहीं, राइट. सो ईश झाग इमेर ऐसा ही है. ओके, सो दैट वी हैव टू टेक केयर. पेटेर, वो क्या बोलता है, आई ऑलवेज से, व्हाट आई ऑलवेज से, पेटेर. डू बीस फाउल, फाउल का मतलब है लेजी, फाउल का मतलब है लेजी, लेजी है तू बहुत. बट und, und means and ich bin fleißig, I am hard worker, I am hard worker, I am hard working person, hard worker means I am hard working, right. You are lazy and I am hard worker, ऐसा. तो पेटर क्या बोलता है, अच्छा ऐसा बात है, सो ich bin faul und du bist fleißig, ऐसा. सो इज एक्सप्रेशन, राइट. एक्सप्रेशन क्या है, अच्छा मैं लेजी और तू हार्ड वर्कर है, ऐसा है, ऐसा वो बोलता है पेटर. सो दैट्स व्हाई आपका कन्वर्सेशन भी ऐसा हो गया, राइट. Ich bin faul und du bist fleißig, das ist falsch, falsch यानी wrong, wrong, that is wrong, das means that is wrong. क्यों रॉन्ग है वो आगे उसका एक्सप्लेनेशन देता है. डू लर्न्स लांगजाम, लांगजाम का मतलब है स्लोली, तू बहुत स्लोली लर्न करता है, यू आर लर्निंग स्लोली. und and I ich lerne schnell, schnell का मतलब है and I learn fast, तू धीरे धीरे काम करता है लेकिन मैं फास्ट काम करता हूँ, फास्ट लर्न करता हूँ, राइट. हाउ कैन यू से ich bin faul und du bist fleißig, das ist falsch, du lernst langsam und ich lerne schnell, are you getting, ऐसा. नेक्स्ट लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट ये आ गया, वो इस, वो का मतलब है वेयर, वो का मतलब है वेयर, वेयर. वेयर इज, देन का मतलब है देन, इन इंग्लिश इट इज देन. वेन, वेयर इज देन डी लेरेरिन, अभी ये आयन देखो, फ्रेंड फ्रेंडिन, अगर फ्रेंडिन है तो फीमेल फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब है मेल फ्रेंड जो हम लोग ने अभी देखा, राइट. और लेरेरिन का मतलब है फीमेल टीचर, टीचर. हम लोग मिस बोलते हैं, मिस हमेशा मिस ही बोलते हैं ना, वेर इज अवर मिस, राइट. अनघा मिस किधर गई, वैसा. सो वेयर इज देन दी लेरेरिन, वेयर इज देन द फीमेल टीचर, फीमेल टीचर ऐसा हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलते, वेयर इज द टीचर, सो टीचर को हम लोग टीचर ही बोलते हो, आइदर इट इज फीमेल और मेल. इफ यू आर टेन देन वो मिस्टर एंड मिस, और यू कैन से मिसेस, लेकिन मिसेस अनघा मैडम ऐसा नहीं बोलते, मिस आप मिस ही लगाते हो, एक्चुअली इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट स्टिल मिस का मतलब है उसका शादी नहीं हो गया है, मिसेस यानी एक्चुअली शादी हो गया है उनका, आर यू गेटिंग इट. सो एक्चुअली वी हैव टू से मिसेस अनघा मैडम, बट जनरली हम लोग लिखते समय मिस करके ही लिखते हैं, बट इट्स यू नो इट्स ब्रिटन इंग्लिश और वॉट एवर इंग्लिश इज, आई एम नॉट नोइंग what kind of English it is, but even though we are following that, in German it's wrong, right. Even in our Indian languages also हम लोग feminine को feminine का ही दर्जा देते हैं, right. वो married नहीं है और married के बाद में उनको उनका ही दर्जा देते हैं, right. In Marathi we are saying सौ, सौ का मतलब है क्या कि वो शादी हो गया उसको. कुमारी, कुमारी का मतलब है उसका शादी नहीं हुआ है अभी तक, right. So like that, so here is also in German also the same type of things are there, so please follow this, right. Who is then the librarian, where is the teacher, in English where is the teacher, but actually where is the female teacher, right. वो एंटोन पूछ रहा है पेटर को कि वो अपना फीमेल टीचर किधर गई. कोम्जिनिस्ट, डज शी नॉट कम, जी, जी यानी अभी ये जी कौन सा है, शी, बिकॉज कॉन्जुगेशन देखो, ये जी किसके लिए लगा है, डी लेररिन के लिए. वो हमारी टीचर नहीं आई ना, तो वो किधर गई, राइट. ती कुठे गेली, राइट. आमची मॅडम नाही आली, ती कुठे गेली, ती याने क्या वो फिमेनिन है ना, इसके लिए ती, राइट. सर नाही आले, ते कुठे गेले, ते म्हणजे काय न्यूट्रल नाही है ऍक्च्युअली, इट्स अगर मस्कुलिन है तो कुठे गेला मीन्स तो, आर यू गेटिंग इट. सो लाइक दैट, जी इज द कॉन्जुगेशन फॉर डी लेररिन. हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस ग्रामर, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ये जी इज नॉट दे नहीं है, दिस इज शी. डज शी नॉट कम, निश मीन्स नॉट, डज शी नॉट कम. Then Peter is answering 9, 9 means no, 9 means no, and nicht means not. Understand this, nicht means not,
and nine means no. फ्राउ मायर, नाउ दिस फ्राउ, फ्राउ का मतलब है मिसेस, मिसेस मायर, मायर इज द नेम ऑफ द लेडी और सर नेम रहेगा उसका, so फ्राउ मायर, मिसेस मायर डज नॉट कम, राइट. जनरली इन जर्मन इफ आई वांट टू से मिस, तो उसको बोलते हैं फ्राउ, LEIN, लाइन. स्पेलिंग थोड़ा सा इधर ऐसा देखो मतलब, फ्राउ लाइन, फ्राउलाइन, फ्राउलाइन का मतलब है मिस, मिस यानी इन मराठी और इन हिंदी वी आर सेइंग कुमारी, कुमारी यानी जिसका शादी नहीं हुआ है, राइट. फ्राउलाइन म्हणजे मिस, फ्राउ मीन्स मिसेस, अंडरस्टैंड दिस. हाँ, फ्राउलाइन मायर, अगर ऐसा आप लोग, अगर कोई मायर, अगर वो जो भी पर्सन है, अगर वो उसका शादी हो गया और अगर आपने उनको फ्राउलाइन बोला, राइट, तो सामने से वो बहुत गुस्सा होगी, राइट. तो वैसा इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, फ्राउलाइन मीन मिस, फ्राउ मीन्स मिसेस. नो, फ्राउ मायर डजंट कम. जी इज इन बोन, अभी जी यानी क्या, फ्राउ मायर मीन्स शी, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे शी. अगर शी है तो अपना वर्ब कौन सा आएगा, झाइन करके वर्ब आएगा ना. जी इज इन बोन, शी इज इन बोन. आबेर, आबेर मीन्स बट. डोर्ट, डोर्ट मीन्स देयर. देयर कम्स हेयर म्यूलर, हेयर का मतलब है मिस्टर, राइट. तो जनरली जैसे अभी कौन सुबह जसप्रीत ने बोला ना, गुटेन अबेंड सर, अभी सर इज इंग्लिश ना, गुटेन अबेंड हेयर ऐसा बोल सकते, गुटेन अबेंड हेयर, राइट. गुड मॉर्निंग सर ओनली, तो मिस्टर. बट हेयर के बाद में हम लोग एक्चुअली नाम लिखते हैं, राइट. तो गुटेन मॉर्गन हेयर योगेश और गुटेन मॉर्गन हेयर पिंगले, लाइक दैट. गुड मॉर्निंग मिस्टर पिंगले, गुड मॉर्निंग मिस्टर. अभी सर, सर जो है ना, SIR सर, सर एक्चुअली वो अलग ही चीज है. वो जब भी हम लोग ब्रिटिश कालीन ये थे, तभी हम लोग सर बोलते थे. सर का मतलब अलग ही है, सर यानी वो बॉस रहता है, राइट. वो एक अलग डिग्री है और सर इज अ बॉस एक्चुअली. एक्चुअली सर इज नॉट बीइंग कॉल्ड इन जर्मन. जर्मनी में अगर गए तुम लोग, तो सर मैडम कुछ भी नहीं बोलते, मैडम को भी वो बोलते फ्राउ मायर, राइट. और फ्राउ, फ्राउ अनेगा, फ्राउ इटसेल्फ इज टेल्स, यू नो, इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट. उसका मतलब है नहीं ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे. इफ यू आर सेइंग नो गुटन मॉर्गन हेयर योगेश और गुटन मॉर्गन हेयर पिंगले, it doesn't mean that you are not giving a respect to me. It's a respect only, right. In German it's respect, right. In English you may say how are you Mr. पिंगले, अगर ऐसा बोला तो अरे क्या एटीट्यूड दिखाता है, ऐसा हम लोग बोलेंगे ना. एटीट्यूड यानी सर भी नहीं बोलता है ऐसा, बिकॉज सर बोलने का आदत ही हम लोग के यहाँ ब्रिटिश से जमाने से ही है. आर यू गेटिंग, ब्रिटिश जमाने से चलते आ रहा है, इसके लिए वो हम लोग सर मैडम ऐसा बोलते हैं. अदरवाइज इन जर्मन इफ यू गो इन यूनिवर्सिटी और वेर एवर, इफ जैसे उधर ही हम लोग, आप लोग सेटल भी हो गए तो भी आप लोग को इमीडिएटली मालूम पड़ेगा विद इन 1 or 2 days, right. The people they will talk like this only, Herr Müller, Frau Mayer, like that, right. Even though they are older than us, still we will say Herr. Actually Herr यानी उनका यही है, यानी रिस्पेक्ट जैसा ही है. इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट गिविंग अ रिस्पेक्ट. आर यू गेटिंग. लेकिन हम लोग को ऐसा आदत नहीं है, सुनने का भी आदत नहीं है. और हम लोग ने भी ऐसा भी कॉलेज में आके बोला हाउ आर यू मिस्टर पिंगले, अरे तो बाकी के स्टाफ लोग बोलेंगे अरे क्या स्टूडेंट है देखो, ऐसा डायरेक्ट मिस्टर पिंगले बोलते हैं. आर यू गेटिंग. बट इट्स ओके, वी विल फॉलो वॉट एवर वी आर डूइंग इट नाउ. बट इन जर्मन इट इज लाइक दिस, राइट. सो इन जर्मन का जो है वो मैं हम लोग देख रहे हैं. एयर ईस्ट, एयर का मतलब है हेयर म्यूलर. एयर मीन्स ही इज द टीचर. अभी ये मेल टीचर हो गया ना, देखो डी लेरेरिन फीमेल टीचर, दिस इज डेर लेरर, लेरर लेरेरिन, लेरेरिन का मतलब है फीमेल टीचर, लेरर का मतलब है मस्कुलिन टीचर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, articles and charts and everything again I am repeating, we are going to do it, but let's understand now. रिस्टिश, रिस्टिश मीन्स करेक्ट. अरे हाँ करेक्ट, क्योंकि बाकी का डायलॉग कैसा है, डायलॉग को भूलो मत. वो क्या बोलता है, बट देयर कम्स मिस्टर म्यूलर. फ्रॉम एयर आई नहीं है, लेकिन वो मिस्टर म्यूलर तो आ गया. ही इज द टीचर, इज द टीचर. रिस्टिश करेक्ट, मग करेक्ट. अभी एल मैंने क्या, लेरर, वो लेरर अभी बोलेगा. रिस्टिश, आई एम द टीचर, इश बिन देयर लेरर und sie sind, अभी नाउ सी द कैपिटल एस,
दिस इज अ पोलाइट फॉर्म ऑफ यू. अभी ये शी नहीं है, पोलाइट फॉर्म ऑफ यू. वी हैव सीन द पर्सनल प्रोनाउन, राइट. जी जिन डी शिवलेयर, यू आर द स्टूडेंट्स. स्कूल्स नहीं, स्टूडेंट्स. जो पहले वर्ड गया था ना, तो शूल था. उस शूल यानी उमलाउट नहीं था और आर नहीं था. शूल यानी स्कूल, शिवलेयर यानी स्टूडेंट्स, और वो भी डी, डी यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ, राइट. सो दैट्स व्हाई यू आर द स्टूडेंट्स. और ये भी पोलाइट फॉर्म, मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो. आप, तू स्टूडेंट है नहीं, आप स्टूडेंट हो, राइट. इट्स अ पोलाइट फॉर्म. इश फ्राग, इश फ्राग मीन्स आई आस्क, मैं आपको पूछूंगा. एंड जी आर टू टर्न एंड यू हैव टू आंसर. यू मीन्स आपको आंसर देने का है. ये पोलाइट फॉर्म ऑफ यू है. आई आस्क एंड शी आंसर नहीं, आई आस्क एंड यू आंसर. मैं पूछूंगा और आप मुझे जवाब दे दो, आप. वी लर्नेन दी Sprache, वी आर लर्निंग द लैंग्वेज. ये लैंग्वेज, वी आर लर्निंग द लैंग्वेज. Sprache, Deutsche Sprache, German language. We are learning, we learn the German language. Wir üben, üben is the verb. Üben means practice. हम लोग को प्रैक्टिस करने का है. We practice die Grammatik, the grammar. We are practicing the grammar. Und wir lernen die Regeln. Regel means rule. Rule. रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हम लोग बोलते हैं रूल्स, हम लोग वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और हम लोग रूल्स भी सीख रहे हैं. ये भाई वर्ब सेकंड पोजीशन में चाहिए, ये पीछे चाहिए, आगे चाहिए, लाइक दैट. हाउ टू कॉन्जुगेट द वर्ब लाइक दैट. वो इज दस बुक, वेयर इज द बुक. हेयर रॉबर्टसन, मिस्टर रॉबर्टसन. देखो वो स्टूडेंट को भी लेक्चर हेयर ही बोलता है, राइट. वो इज दस बुक, वेयर इज द बुक, मिस्टर रॉबर्टसन. सो रॉबर्टसन क्या बोलता है, हियर इज दस बुक, हियर इज द बुक, ये मेरे पास बुक है. हियर इज दस बुक, राइट. हियर इज आउक आइन हेफ्ट. हेफ्ट का मतलब है नोटबुक, नोटबुक. ये देखो मेरे पास नोटबुक भी है. फ्यूलर, फ्यूलर का मतलब है पेन भी है. उंड आइन ब्लाइस्टिफ्ट यानी पेंसिल भी है, पेंसिल. अंडरस्टैंड दिस. आइन का मतलब है अ, ये आर्टिकल है. अ पेंसिल, अ नोटबुक एंड अ पेन, ऐसा. हियर आर, हियर आर ऑल्सो अ नोटबुक, अ पेन एंड अ पेंसिल, राइट. खाली बुक नहीं मेरे पास, ये भी चीजें है. रिस्ट इज करेक्ट. डांका, डांका यानी थैंक्स, करेक्ट, थैंक्स. आर यू गेटिंग. ये है अपना पहला एक्सरसाइज. यू नो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू रीड इट अ लॉट, सो मेनी टाइम्स, राइट. सो दैट जैसे मैंने ऐसा फ्लुएंटली जैसा आपको आना चाहिए, फ्लुएंटली. नो, फ्लुएंटली का मतलब क्या है, यू शुड नो स्टक. दस इज फाल्स, डू लेर्स लांगजाम. अगर ऐसा मैं बोलने लगा तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा आप डायलॉग बोल रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो. आर यू गेटिंग इट. और पढ़ना भी नहीं, अगर आप सामने वाले से भी बात करोगे और हम इफ यू आर ट्राइंग टू यू नो डू के बाद में लेर्स, लर्नन, ईश लर्नर, डू लेर्स. हाँ, डू लेर्स. अभी स्लोली को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं. अगर ऐसा नो, इफ यू पुट लाइक दिस, देन ऑब्वियसली सामने वाला रहेगा वो उधर से भाग जाएगा, राइट. सो वी हैव टू, हम लोग कहते हैं छोटा छोटा सेंटेंस करना चाहिए. और वो भी कैसा, ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट, राइट. एंड ऑल्सो यू शुड इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, राइट. वोकेबुलरी कैसे इंप्रूव होगा, ऐसे ही होगा. हम लोग जैसे सीख रहे हैं ना, उतना भी हम लोग ध्यान देके 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 आगे जा रहे हैं ना, तो भी आपका बहुत ही फायदा हो जाएगा. नाउ ये जो लेसन हम लोग ने सीखा है अभी, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सरसाइजेस है. एंड दैट एक्सरसाइजेस आई एम गोइंग टू, आई थिंक आई हैव सेंड यू. नाउ आई हैव सेंड ओनली दिस मच, ओके. आई विल सेंड यू, राइट. 1 minute. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ. रिया क्या डाउट है. No, sir. जसप्रीत, यू गॉट एनी डाउट. No, sir. This is my first class, so I think I might need 1-2 more sessions to get used to it. No, no issue, no issue. I have already uploaded the first 2 videos which we have taken it. So I will give you the link of it.
German language Yogesh Pingle. If you type it in YouTube also, I have already opened the German language channel. So whatever you are taking online, so this is the third lecture. Previous there were two lectures, so that two lectures are available on YouTube. So just go through it, you will get the whole idea. You don't worry about it. Yes, sir. Okay, now let's go ahead. One second. Huh? देखो जरा ओपन करो. दिस यू ओपन, ये वाला पहला. I will open it over here. I think you can able to see what I'm showing you. Yes, sir. Okay, very correct हाँ. So let's do it. Okay. आपने ये बुक खरीदा तो भी चलेगा. It's only 150 or 200 rupees. Right? It's very nice book, very nice book. यानी ये बुक में से 10 चैप्टर भी किए ना, 10 चैप्टर भी किए तो भी आपका A1 एंड A2 तक ग्रामर पूरा है उधर. ओनली 10 चैप्टर्स, यू कैन जस्ट इमेजिन. राइट, देयर आर टोटल आई थिंक 30 to 35 चैप्टर्स आर देयर. लेकिन पहले 5-6 चैप्टर किया ना तो भी आपका पहला जो A1 सर्टिफिकेशन है हम लोग का, तो पूरा ग्रामर कवर होता है. एंड इफ यू लुक एट द ग्रामर पर्सपेक्टिव ना, क्योंकि एक बार आपको प्रोनाउंसिएशन मालूम पड़ा, एक बार आपको ग्रामर पूरा मालूम पड़ा ना, आफ्टर दैट you can उसका this is a base is a grammar, right? After that you can go ahead from your side only. So let's start with it. Okay, ये देखो हम लोग अभी ये सब सॉल्व करेंगे, right? उसके पहले I would like to show you, I would like to tell you the articles, राइट. वो देखने के पहले चलो आर्टिकल्स, ऐसा हम लोग देखते हैं. आर्टिकल्स. सो आर्टिकल्स में क्या है ना, आर्टिकल्स में देयर आर फॉर्म्स भी है. नॉमिनेटिव, राइट, अक्यूजेटिव एंड दाटिव, राइट. ये है एंड जेनेटिव. ये 4 फॉर्म्स है. अभी फिलहाल तो आपको जो भी कंटेक्स्ट आएगा, पहला 2 लेसन है उसमें नॉमिनेटिव ही है और अक्यूजेटिव थोड़ा बहुत है. दाटिव जेनेटिव तो आपको बाद में आएगा, राइट. लेकिन ये क्या है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दीज आर द फॉर्म्स. लाइक इन संस्कृत वी हैव गॉट प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी. ये कैसे फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स है. तो ये आर्टिकल्स के पॉजिटिव प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन, हर एक का फॉर्म्स है. अभी हम लोग ने एक ही फॉर्म देखा है पर्सनल प्रोनाउन का. कौन सा वाला? खाली इश, डू, एर, एस, जी, वीर, इर, जी. दिस इज वन फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड दैट फॉर्म इज नॉमिनेटिव यानी प्रथमा, right? In Sanskrit it is called as prathama. Now let's see masculine, feminine, neutral and plural form. Types of articles in English we are having only the and a or a, you can say, right? The is something called as definite article, right? आर्टिकल, अभी ये आर्टिकल का स्पेलिंग अलग है, मैं जर्मन का स्पेलिंग लिख रहा हूँ, नहीं तो दिस इज इनडेफिनाइट आर्टिकल. अगर ऐसे इंग्लिश में ऐसा है, जर्मन में KEL, राइट. सो इनडेफिनाइट आर्टिकल यानी अ एंड डेफिनाइट आर्टिकल माने द. सो हर एक थिंग, जैसे बोला मैं ती खिड़की बंद कर रहा हूँ, खिड़की यानी क्या, विंडो. वो खिड़की फेमिनाइन है, राइट. इन मराठी इट इज फेमिनाइन, बट इन इंग्लिश द विंडो. सो दे आर डोंट केयरिंग अबाउट द genders ऑफ एनीथिंग, right? In German or in Indian language we are caring about the genders for each thing. Okay, that's why. Now which type of ये chart we are saying, we are taking this chart for bestimmt. Bestimmt का मतलब है definite article. Bestimmt का मतलब है definite article. जर्मन में उसको बोलते हैं bestimmt article. आर्टिकल्स नहीं, आर्टिकल. ओके, तो बेस्टिम आर्टिकल का ये चार्ट है, राइट. सो डेयर, डी, डस, डी, राइट. अपोजिटिव में आता है डेयर, देन, डेम, डेस, एस, डी, डी, डेयर, डेयर, डस, डस, डेम,
dash s and d d then n there. अभी देखो, हाँ, ये पहले है ना चार्ट है, ये चार्ट हम लोग को है ना सब बाहर करने का. देयर आर सो मेनी चार्ट, राइट. वी हैव सीन फर्स्ट द पर्सनल प्रोनाउन चार्ट, राइट. वो देन वर्ब का हम लोग ने थोड़ा चार्ट देखा था, तो ये वाला चार्ट आप लोग ध्यान में रखो, राइट. अभी ये बाहर कैसे करने का, पहले बाहर करना पड़ता है. कैसे बाहर करने का, डेयर देन डेम डेस एस, डी डी डेयर डेयर, डस डेम डेस एस, डी डी डेन एन डेयर, राइट. ऐसा कॉलम वाइज मुझे ये बाय हार्ट करने का है, कॉलम वाइज मुझे बाय हार्ट करने का है, राइट. सो ये कैसे होता है कंटेक्स्ट में, देखो कंटेक्स्ट में, 1 सेकंड. अभी हम लोग को ये कंटेक्स्ट में आया नहीं है, राइट. बट इन अवर डिफरेंट बुक, राइट, द कंटेक्स्ट आर देयर. ओके, जैसे हम लोग अलग अलग बोलते हैं, ऑपोजिटिव यानी एक्शन जब भी कर रहे हैं तभी ऑपोजिटिव डालने का, पोजीशन है तभी डाटिव, दैट आई विल टेल यू, राइट. लेकिन अभी फिलहाल आज के दिन में आपको ये ध्यान में रखने का है, डेयर डी डस डी, राइट, उतना ही. हाँ, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, डेयर डी डस डी. ओके, डेयर यानी मस्कुलाइन, द फेमिनाइन द, न्यूट्रल द एंड प्लूरल द, राइट. अभी उसका हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वी विल कम टू नो. देयर मान, मान का मतलब है मैन, देयर मान. एग्जांपल, द मैन. डी, हम लोगों ने अभी वर्ड लिया है डी फ्राउ, द लेडी और द मिसेस, द लेडी. ओके, एंड डस किंड, द चाइल्ड. द नाउन का फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, ऑलवेज कैपिटल. ओके, और डी, डी का मतलब है प्लूरल, और हर एक प्लूरल को अलग अलग उसका कन्वर्सेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से डी मेनेर. अब ये मेनर कैसे लिखने का देखो, हाँ, मैंने अभी जस्ट ये जर्मन कीबोर्ड निकाला था, एम मेनेर, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, एम ए उमलाउट डबल एन ई आर, मेनेर. हाँ, ए उमलाउट है, हाँ, दिस इज अ लेटर ए उमलाउट, राइट. यू कैन जस्ट सी कि सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर यानी एक ही पर्सन, द मैन, आणि द मेन इन इंग्लिश व्हाट यू विल से, द मेन. प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म ऑफ देयर मान. लेकिन जब भी हम लोग ये करते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म देते हैं, तो आर्टिकल कौन सा लगाने का, डी. जैसे डी फ्राउ, इन प्लूरल फॉर्म इट इज अगेन डी, बट ending is frauen, the ladies, the ladies. Okay, now das kind, die kinder, right. now ये कैसे हम लोग को पहचानने का है, पहचानने के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. वी हैव टू डू द लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना है हम लोग को, राइट. बिकॉज ग्रामेटिकली इज नॉट सो इजी ऑल्सो कि द मैन है, द मैन है, इंग्लिश इट इज ओनली द दिस एंड दिस. लेकिन अभी जर्मन में क्या है, जर्मन में तो आपको आर्टिकल भी ध्यान में रखने का है कि मान है, यू कैन नॉट से डस मान, डस मान किया तो ते पर्सन यानी वो न्यूट्रल हो जाएगा. आर यू गेटिंग? और यू कैन नॉट से डेयर फ्राउ, यू हैव टू से डी फ्राउ. डेयर फ्राउ बोला तो वो फ्राउ बराबर है, लेकिन फ्राउ के अगर पहले आपने डेयर लगाया तो मर गए फिर, राइट. अगर मैं इसको रिया को पूछ रहा हूँ तू कैसा है, तो बोलेगे सर मैं कैसी हूँ, ऐसा बोलो ना, कैसा है कैसे बोल रहे हो, आई एम फेमिनाइन, right. So in German also they'll be treat like this. So articles are very very important, and we have to remember the articles. Not only we have to improve the vocabulary,
यानी खाली वोकेबलरी इंप्रूव करके कुछ नहीं मिलने वाला है जर्मन में, राइट। इट्स नॉट लाइक इंग्लिश कि जीआरई का स्टडी किया फटाफट आपने इतना बुक पढ़ा है और वोकेबलरी आपको सब मालूम है, राइट। बट हाउ यू आर गोइंग टू make the sentence, the grammar and the genders, these are going to a lot to do, right? So ये ध्यान में रखो, ये accusative dative and genitive वाला अभी फिलहाल आप ध्यान लो मत, लेकिन ये भी फॉर्म आपको इमीडिएट टेक्स्ट में आने वाले हैं, राइट। अभी ये हो गया बेस्टिम्ड आर्टिकल ना। सो लेट्स गो फॉर उन बेस्टिम्ड आर्टिकल। बेस्टिम्ड का मतलब है इनडेफिनेट आर्टिकल। लेट्स सी, again we have got the same thing, right। इन indefinite का मतलब क्या है? अ, हाँ, अ। तो अ के लिए नॉमिनेटिव में हमारे पास है आइन, आइन, उन न्यूट्रल में भी आइन, एंड देयर इज नो प्लूरल फॉर्म। अ पर्सन, अ पर्सन्स ऐसा बोलते ही नहीं है। सो देयर इज नो प्लूरल फॉर्म फॉर इनडेफिनेट और उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, राइट। बट देयर आर फॉर्म्स। फॉर्म्स है तो हम लोग वो चार्ट तो देखेंगे ही। चार्ट तो हम लोग को आज नहीं तो कल हम लोग को आने वाला ही है, अक्यूजेटिव यानी द्वितीया। सो आइन, आइनन, दाटिव एंड जेनेटिव, ये तो हम लोग को आने वाला ही है। आइनम एंड आइनस एस। हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, देयर यू विल आइडिया विल गेट क्लियर। आइना, आइना, आइनेर एंड आइनर, आइनेर, उन आइन, आइन, आइनम, आइनस एस, राइट। अभी सपोज ये है ऐसा, तो इसमें भी आप लोग आइनमान, आइना फ्राउ, आइन किंड, अ मैन, अ लेडी, अ चाइल्ड, ओके, एंड देयर इज नो प्लूरल फॉर्म फॉर इट, ओके। अभी अगर हम लोग ऐसा सपोज ये देखते हैं, आई गिव अ पेन, राइट, टू यू। यू यानी जर्मन में कौन, इंग्लिश में यू यानी क्या, सब कुछ है। यू यानी तू भी है, आप भी है, और ऑल ऑफ यू भी है, राइट। किसको पेन दिया, राइट, ऐसा लाइक दैट। बट नाउ हाउ हाउ आई विल डू दिस लाइक दिस। अभी यू यानी क्या, यू का मतलब है तू। मैंने तुझे पेन दिया, आपको नहीं, तुझे, राइट। तुझे पेन दिया, नहीं, मैं रिया को पेन दिया, मैं तुझे पेन दिया। अभी तुझे यानी क्या, डू। व्हाट इज द कंटेक्स्ट, इट इज डू, राइट। वी हैव सीन द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का भी वापस थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। पर्सनल प्रोनोमेन, प्रोनोमेन, पर्सनल प्रोनाउन, वो कैसा, इश, डू, एर, एस, S सी, T Sim वीर, Ir ईर, ईर, E C जी, जी, ये तो हम लोग को मालूम है, राइट। आई, यू, टू, टू कैसा है, टू कैसी है, एयर मीन्स ही, इट, एस मीन्स इट, एंड जी मीन्स शी, करेक्ट। एयर मीन्स वी, We एयर मीन्स all of you all of you, and G means they, say and polite capital form Z means polite form form of of you. you. अभी हम लोग ने, दिस इज इन नॉमिनेटिव फॉर्म, दिस इज इन नॉमिनेटिव फॉर्म, ओके। तो नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, जस्ट सी इट, एंड दाटिव। अभी इतना ही देखते हैं इसका। इसका फॉर्म्स कैसे चेंज होगा, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव एंड दाटिव, ओके। सो ईश, ईश, मीश, मीर, ऐसा होता है, हाँ। ईश यानी क्या है, आई। मीश यानी क्या है, माई सेल्फ। एंड मीर यानी क्या, टू मी। आर यू गेटिंग, दिस इज, दीज आर द फॉर्म्स, राइट। डू, डिश, डीर, है ना। हम लोग ने दूसरा पेज, दूसरा ये लिया था ना, दूसरा बुक, दूसरे बुक में देता ना गुटेन टाग, गुटेन टाग वाला जो लेसन हम लोग ने पढ़ा था। और हम लोग ने क्या इधर क्या लिखा था,
ही गेट एस डीर, है ना, उधर एक कोई ये आता। अभी डीर यानी क्या, यू ना, लेकिन ये डीर ग्रामेटिकल में कौन से फॉर्म में है, ग्रामेटिकल यानी डू का डाटिव फॉर्म है, वो डू का डाटिव फॉर्म है। अब डू का डाटिव फॉर्म क्यों डाला, बिकॉज हाउ आर यू, वी गेट एस डीर, राइट, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, वी गेट एस डीर, गेट एस डीर, हाउ आर यू, राइट, इट्स द डाटिव फॉर्म, आर यू गेटिंग, ऐसा है। ओके, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, it is very very important. Okay, so let's see, I give a pen to you, right, a pen यानी क्या, what is a pen, फ्यूलेर, फ्यूलेर, अभी उमलाउट है यहाँ, सो ये ऐसा है, एफ यू उमलाउट डबल एल ई आर, फ्यूलेर ना, दिस इज द वर्ड, एफ यू उमलाउट ई डबल एल ई आर, फ्यूलेर यानी पेन। ओके, और ये अभी डेयर है, ड से क्या डी है, सो इट्स अ डेयर, डेयर फ्यूलेर, ध्यान में रखना है, डेयर फ्यूलेर। अभी सर आपको कैसे पता है, राइट, मैंने ये बाहर किया क्या नहीं, अभी ये आदत से आ गया, फ्यूलर है तो डेयर फ्यूलर, राइट, सो देर इज नो लाइक रूल्स, यू नो। ती खिड़की, खिड़की को आप लोग फीमेनाइन क्यों बोलते हैं, तो दरवाजा, दरवाजा को आप लोग मराठी में मस्कुलाइन क्यों बोलते हैं, राइट, फैन को तो पंखा, राइट, ते पुस्तक मीन्स बुक को आप न्यूट्रली क्यों बोलते हैं मराठी में, अरे इट्स अ, यू कैन से द, यू नो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं घुस रहे कि जिसमें ग्रामर कैसे बना जर्मन का और मराठी में ग्रामर किधर से आ गया, सो इट्स अ, यू नो, इट्स अ, यू कैन से द हैबिट, रोज का रोज सुनते सुनते, रोज का पढ़ते पढ़ते हम लोग को इतना आदत लगा है। अभी 4-5 साल, अभी मुझे अभी कितना 7-8 साल हो गया, मैं जर्मन से कितना मैगजीन रीड करता हूँ, आर्टिकल रीड करता हूँ। अभी फ्यूलर फ्यूलर बोला तो मुझे मालूम है डेयर फ्यूलर। अभी किसी ने मुझे बोला कि तो दरवाजा बंद कर, दरवाजा इस तो ओनली, ती दरवाजा मैं बोल ही नहीं सकता है मराठी में। मतलब किसने मुझे पूछा अरे ये टी दरवाजा क्यों है, तो दरवाजा क्यों है, टी क्यों नहीं है, अरे क्यों नहीं है यानी मराठी में हम लोग दरवाजों को मस्कुलिन नहीं बोलते हैं ना, तो दरवाजा ही बोलते हैं, आर यू गेटिंग, तो इट्स लाइक दैट, राइट। इन इंग्लिश बहुत कुछ सिंपलर फॉर्म है, बहुत कुछ सिंपलर फॉर्म है, लाइक वेयर इज द पेन, अभी द पेन है ना, द पेन, अ पेन बोलो, द पेन बोलो ना, हम लोग को इतना फॉर्म्स है, राइट, आइन, आइनन, आइनम, इतना अ का फॉर्म से, द का फॉर्म से, ऐसा इंग्लिश में है ही नहीं, हम लोग को द और अ वही है, बात खत्म, राइट। द किधर लगाने का, अ किधर निकालना, वो भी हम लोग को मालूम है, आई हैव अ पेन, एक ही पेन है, तो आई हैव द पेन्स, राइट, तो प्लूरल फॉर्म है तो द पेन्स बोलते हैं, अ नहीं बोलते ना, है ना, इट्स लाइक दैट। तो उतना ही फॉर्म्स है, बट हियर लॉट ऑफ फॉर्म्स आर देयर। सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, आई यानी इश, नाउ आई नो, गिव, गिव का वर्ब है गेबेन, गेबेन मीन्स टू गिव, and I know how to conjugate it. So how will I will conjugate ish? Anybody? How I will conjugate this verb? Ish. Very good. Ish gave. Okay. अभी फ्यूलर है ना, फ्यूलर यानी फ्यूलरी, सो इश गेब फ्यूलर। अभी मुझे आर्टिकल डालने का है, अभी फ्यूलर, हाँ फ्यूलर, अभी अ है ना, जनरली अ ही हम लोग बोलते हैं, सो मुझे ये क्या करने का है, और डेयर है, डेयर यानी मस्कुलिन, मस्कुलिन का आर्टिकल क्या है, आइन, सो आई विल इश गेब आइन फ्यूलर। लेकिन अभी मजा कैसा मालूम है कि मैं दे रहा हूं ना, सो आई एम डूइंग एक्शन, सो एक्शन ऑलवेज गिव मी द ऑक्यूजिटिव फॉर्म, ऑक्यूजिटिव फॉर्म, सो आइन, आइनन, सो मुझे इधर डालने का है इज गेब आइनन फ्यूलर, ऐसा बोलना पड़ेगा, राइट। अभी डू यानी तेरे को, तुझे, तेरे को मेरे को ऐसा नहीं, तुझे, अभी तुझे मैं बोला तो यानी क्या, इट्स अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ डू, राइट, बट मैं दिया है, व्हाट, वेयर इज द पोजीशन, यानी मैं पेन दिया और किधर आ गया, तेरे पास आ गया ना, तो इट्स पोजीशन इज यू, पोजीशन है तो डाटिव फॉर्म, डाटिव फॉर्म है तो डू डिश डीर, सो डीर आना चाहिए, सो ईच गेब आइनन फ्यूलर डीर, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया जर्मन में, आर यू गेटिंग, ये एकदम परफेक्ट सेंटेंस हो गया, ईच गेब आइनन फ्यूलर डीर, आर यू गेटिंग। You can just imagine to make one sentence, I have to remember lot of grammar, lot of grammar. कौन से फॉर्म में है, आर्टिकल कौन से फॉर्म में है, पहला वो मस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल है का वो है, वो देखना चाहिए। अगर आपने फ्यूलर को अगर गलती से आईना पकड़ा और बाद में आपने ऑक्यूजिटिव भी डाला तो भी कैसे होगा, ईच गेब आईना फ्यूलर,
Einer Fuller is wrong because you are treated, or even if you are saying neutral, so ich gebe ein Fuller, ein Fuller बोला तो ये वाला ये नहीं होगा, बिकॉज आप दे रहे हो ना, दे रहे हो यानी ये वाला आइन होगा। अभी ये वाला आइन होगा तो जर्मन वालों को, लोगों को क्या लगेगा कि आपने फ्यूलर न्यूट्रल पकड़ा है। आर यू गेटिंग इट? रिया समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा। Yes, sir. जसप्रीत, हेलो, ओके ठीक Yes, है। sir. Yes, या sir. सो इट्स लाइक दिस, इश गेबर आइनन फ्यूलर डीर, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया, राइट। अभी अकॉर्डिंग टू दिस कंटेक्स्ट अगर आप लोग इधर देखोगे, राइट, नाउ वी विल सी इट, फ्रागन मीन्स व्हाट? डी फ्रागर, डी फ्रागर इज एन एक्चुअली एडजेक्टिव और नाउन है ना। फ्रागन मीन्स टू आस्क, ये वर्ब हो गया, एडवर्ब यू कैन से, द डी फ्रागर मीन्स द क्वेश्चन, antworten टू आंसर वर्ब है, डी antwort द आंसर। देखो ये फीमेनाइन है, डी antwort, डी फ्रागर। डी शूलर मीन्स द स्कूल, डेर शूलर द मेल स्टूडेंट, डी शूलेरिन द फीमेल स्टूडेंट। विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, राइट। मित्र, मैत्रीण, सी डेर फ्रेंड मीन्स मित्र, डी फ्रेंडिन यानी मैत्रीण, फीमेनाइन फ्रेंड, राइट। इट डजंट मीन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो नहीं है, दिस इज व्हाट? मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड। डेर लेरर द मेल टीचर, डी लेरेरिन द फीमेल टीचर। यू गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को इसका बहुत एक्सरसाइज करने का है। आर यू गेटिंग इट? सो आई थिंक व्हाट आई विल डू, हियर आई विल जस्ट टेल यू, फाइंड आउट दिस डेयर डीडस, डेयर डस दी, ये जो चार्ट लिया वो हम लोग ने वही लिया है, और ये ऑपोजिट वर्ड्स है, फ्लाइजिश फाउल, लांगजाम स्नेल, फिल वेनिग, रिस्टिश फाल्श, राइट करेक्ट रॉन्ग, मच लिटिल, स्लो फास्ट, हार्ड वर्कर लेजी, ओके। और ये जो रूल्स है अभी इधर आपने, और उन बेस्टिम निगेटिव, इनडेफिनेट नेगेटिव आर्टिकल काइन है, नो टीचर, नो नोटबुक, नो रूल्स, काइन काइन काइन, ऐसा है। आर यू गेटिंग? ऐसा है। तो आई थिंक हम लोग जितना आपको लग रहा है उतना आप लोग लिखो। आंटवर्ट यानी क्या? डी आंटवर्ट। ब्लाइस्टिफ यानी क्या? डेयर ब्लाइस्टिफ। बुक यानी क्या? डस बुक, राइट, न्यूट्रल है। अगर आपको थोड़ा बहुत ये करने का है तो आपको ये जो है आपका जो दूसरा बुक है, वोकेबुलरी दी है आपको, वोकेबुलरी, वो वोकेबुलरी में ढूंढ के आप निकाल सकते हो, राइट। व्हाट आई विल डू नेक्स्ट टाइम, वी आर गोइंग टू डू टेक इट इन डिटेल अगेन, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, जो ये वाला एक्सरसाइज है। अगेन आई हैव गिवन यू वन मोर थिंग, राइट, ये वाले जो एक्सरसाइज है, राइट, ये वाले, राइट, उनका नाम वर्ब है, वर्ब तो ऑलरेडी लिया है, लेकिन ये देखो इधर कैसे डालने का। रिचर्ड उन पेटर कोम के आगे क्या लगाने का है? ईएन लगाने का है, टी लगाने का है, क्या लगाने का है? ये वाला एक्सरसाइज। आर यू गेटिंग इट? ओके, ये वाला एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने का है। बाद में अगेन दिस इज ऑल्सो, राइट, डू डेयर जी, क्या क्या लगाने का है, किधर क्या क्या लगाने का है। सो पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम लोग करके भी लेंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट, राइट। इन द मिडल टाइम इफ वी कम अक्रॉस एनी डे where we can take it an extra lecture like that there also we will take it extra lecture, right, अगर ऐसा लगे तो। अदरवाइज सैटरडे इज फाइन फॉर अस। लेकिन आज मैं इसके आगे नहीं जाता हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये पूरा आपको डबल डोज हो जाएगा, राइट। ऑलरेडी लॉट ऑफ ग्रामर इज देयर, एक चैप्टर भी अपना हो गया है, वो ट्रांसलेट करो, लिखो बुक में अगर चाहिए तो, राइट। आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो इमीडिएटली आफ्टर दिस, ओके। डेयर डी डस डी, डेयर डेन डेम डेसेस, डी डी डेयर डेयर, डस डस डेम डेसेस, डी डी डेनन डेयर। एटलीस्ट ये बाहर तो करो, बाहर आइन आइनन आइनम आइनेसेस, आइन आइन आइनेर आइनेर, आइन आइन आइनम आइनेसेस। जितना आप लोग बाहर करोगे उतना आपको भी इजी आसान हो जाएगा। इश मिश मीर, डू डिश जी डीर, राइट, उसके भी आगे है, लेकिन हम लोग क्या है ना, ज्यादा लेंगे तो आपको हजम नहीं होगा। इश इन इम, एर इन इम, एस एस इम, ऐसा भी है, ओके। जी जी ईर, अभी ईर यानी ऑल ऑफ यू नहीं है, दिस ईर इज इन डाटिव फॉर्म ऑफ जी, ये है। वो कैसे कंटेक्स्ट में डालने का है, कैसे करने का है, वो मैं आपको बाद में बोलूंगा। वीर
uns uns यानी our self, और dative form of uns यानी us, to us, like that. Okay. Ir oesh अलग है, हाँ. Ir oesh oesh. Okay. And z, और ये कैपिटल Z, उसको भी Z थी, और है ईनन, ईनन लगाने का. जी जी ईर, ये इसके लिए ईर है, और इसमें जी जी ईनन ऐसा है. हाँ. ओके. झीझी इनन लास्ट में, झीझी इनन. अगर मैं बोलता हूँ ना वी गेटेस इनन, अगर इसके बजाय वी गेटेस इनन, तो उसका मतलब क्या, आप कैसे हो. वी गेटेस डी यानी तू कैसा है. वी गेटेस इनन, ये वाला इनन अगर मैंने लगा डाला तो क्या होता है, आप कैसे हो. राइट. मुझे लगता है ये 3 चार्ट आप थोड़ा बहुत गो थ्रू करो. 1 2 3. Right. See the the dialogues what we have seen. Read the do the reading practice. Right. Read it loudly at home. Right. It is going to make a difference a lot. राइट. इतना डोज मुझे लगता है आज के दिन में सफिशिएंट हो गया. राइट. अदरवाइज थोड़ा सा ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा तो नहीं, आगे जाने में मतलब नहीं है. ये पहले आप पहले फिक्स करो आपके दिमाग में. राइट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल रिवाइज एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ. और एक्सरसाइज जो मैंने दिया है ना, वो एक्सरसाइज भी हम लोग नेक्स्ट टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं. तो डू नॉट वरी दैट वो एक्सरसाइज मुझे सॉल्व करने का है. It's not like assignment to given it to you like that. Right. The students who have got the things, they can able to solve it. लेकिन जिनको अगर नहीं जम रहा है और उसको टाइम जा रहा है, तो लेट्स कीप इट एज इट इज, ऐसे ही रहने दो. नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग वापस चालू करेंगे, वी विल टेक दिस. ओके. इज इट ओके नाउ, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So now we will stop. Huh? Okay. So I will just stop recording.